हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एक्वाटिक बायोम्स। एक्वाटिक बायोम्स here there is the most important. The aquatic ecosystem are constituted by their water bodies. The water cover about one third of the earth's surface. The origin of the life look a place aquatic ecosystem. Therefore this is ecosystem make a important component of our biosphere. The aquatic ecosystem are classified on the basis of the salinity into the following two types. The first is a fresh water and second is marine. That is the most important here. And the come of first fresh water ecosystem. That is the most important here. The water on land which is a continuously recycling and has a low salt content known as a fresh water. There is a fresh water is a called there is a very low amount of salt content in this type of water. And the study of fresh water ecosystem is known there's a limnology. The limnology is there a study of the fresh water ecosystem is called limnology. The fresh water are classified into two types. The first is standing or still water. Atlantics means pond, lake, box and swamps. And the second is a running water means lotics. There is a spring, mountain, brooks and stream and river. That is the most important here. And commonly found of flora in the pond and lake include is a Peptoplacotus, fresh floating macroscopic plants and such as algae is diatoms. And floating plant here is a Pistia, water lysines and the limana and azolla. And the rooted plant here is a Hydrilla and Vascularia and Tapa and water lily. And second is the common animals is a pond and the lake include here is a Zumo plant, cottons, free floating microscopic plant and such as the protozoans and there is a crustaceans and the actively is a swimming fish, frog and tortoise. And the bottom dwells like a hydra, bombs, pavans and crabs is snails. There is the most important is animal here and the birds such as the herons, water, falls and duck is occur in and around water. The wetland here are the between their aquatic and terrestrial ecosystem and they is show on the Addis effect on for the ecotones. The ecotones is the transitional zones between two ecosystem. Example of wet zone are swamps and the marshes as the mangroves. दोस्तों यहाँ पर जो है जलीय बायोम यानी एक्वाटिक बायोम्स के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, जलीय बायोम, एक्वाटिक बायोम्स मतलब यही हुआ कि जलीय बायोम का निर्माण जो जलाशय द्वारा होती है। क्योंकि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि हम जल की बात रहने जा रहे हैं। जल पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग जो है घेरा हुआ है। यानी देखा जाए जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे ही जल जो है पृथ्वी पर भी घेरा हुआ है। जीवन का आरंभ अगर देखा जाए तो जलीय पारितंत्र में ही हुआ है, जो साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया है कि जो जीवन का आरंभ हुआ है वो जलीय तंत्र में ही हुआ है। अंततः यह पारितंत्र हमारे जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है। कहते हैं लवण के आधार पर जलीय पारितंत्र के वर्गीकरण के दो प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक जो होगा लवण जलीय यानी फ्रेश वाटर और एक जो होगा समुद्री यानी मैरीन, जो कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है जो है अलवणीय पारितंत्र। तो अलवणीय पारितंत्र क्या है? देखिए, अलवणीय पारितंत्र में जो है जमीन पर जल जिसका चक्र निरंतर चलता रहता है और जिसमें लवण की मात्रा अत्यंत न्यून हो, यह अलवण जल कहलाता है। अलवणीय जलीय जो है पारितंत्र का अध्ययन, ठीक है, उसको हम सैरोवर विज्ञान कहते हैं यानी लिमोलॉजी कहलाता है, सैरो विज्ञान कहलाता है। अलवणीय जलाशय के दो समूहों में विभाजित किया गया है। एक तो किया गया स्थिर या रुका हुआ जल, यानी जिसको हम रुका हुआ जल कहते हैं, जो बड़े बड़े जो है पॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें लैट्रिक्स कहते हैं, यानी इसको लैट्रिक्स कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, दलदल हो गया, अनूप्स हो गया। तो यहाँ पर जो जल होता है रुका हुआ होता है। लेकिन दूसरा जो है आपको बहता हुआ यानी सरिता जल कहते हैं, जिसको हम लोटिक्स कहते हैं। लोटिक का उदाहरण होगा जैसे झरना, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएँ और नदियाँ। तो ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात अगर देखा जाए तालाब और झील के समानता पाई जाने वाले पादप जात, देखिए कौन कौन से जो है पादप जात तालाब और झीलों में पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो पादप लवण जो है मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म पादप जैसे शैवाल, डाइटम पाया जाता है और तैरने पलम करते वाला पादप यानी तैरने
और प्लावन करते हुए पादप जो है प्लिस्टिया, जलकुंभी, लेमना, ठीक है, एजोला, कमल, ये सारे पाए जाते हैं। अगर तीसरी बात देखा जाए यहाँ पर जड़ युक्त पादप, यानी जिसमें जड़ पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम पादप की बातें कर रहे हैं जो कि फ्लोटिंग था, अब जो है हमारा रूटेड जो प्लांटेड है। यहाँ पर कहा जाए अगर जड़ युक्त पादप की बात करें हम तो इसमें हाइड्रा सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आएगा बेलिसोनेरिया, कमल, सिधारा और जल कुमिनंदिनी यानी लिली आदि आएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखा जाए दूसरा, तालाब व झीलों में सामान्यतः पाए जाने वाले प्राणी, अब कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं तो ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जल में मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म जंतु जैसे प्रोटोजोआ और जैक्रस्टी या प्राणी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए सक्रिय रूप से तैरने वाले जैसे मेढक, मछलियाँ व कछुआ यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर तीसरी बात देखें तो जल में रहने वाले जैसे हाइड्रा, क्रूमी, फ्रॉन, केकड़े, घेंगे आदि भी पाए जाते हैं जिनके लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छा कंडीशन प्राप्त होता है। अगर हम पक्षी जैसे बगुला, जलमुर्गी, बत्तख आदि पानी के आसपास पाए जाने वाले जो है पक्षियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं जलीय स्थलीय पारितंत्र के मध्य जो है आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स पारितंत्र होते हैं जो कोर प्रभाव दिखाते हैं और एक जो है इकोटोन्स बनाते हैं। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्थलीय और भूमि जो संक्रीमन बीच का क्षेत्र होता है, और दलदल के उदाहरण जो है अनुपम्स यानी कश, मार्शल्स और जो है गयान यानी मैंग्रोव्स आदि होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है।